Hello friends, welcome to iExamB. I'm Satakshi and I'm your English faculty at iExamB, and in this video we will see something relevant for your EPFO, EOAO and APFC exams, and that is studying jumbled parts of a sentence and jumbled sentences of a paragraph. So friends, in our previous year papers of EPFO, EOAO and APFC, in both the types of exams we saw jumbled parts of a sentence kind of questions, right? And in this kind of question you are given a sentence which is broken into parts, and the parts are jumbled as the word, as the name suggests, right? And then you have to arrange them in a sequential order. Now also you may get one of the parts fixed, and then you have to arrange the remaining parts of the sentence. Now this is very important pattern, important because you will definitely have some questions based on this. It is a no-brainer because in every previous year paper we have seen questions from this pattern, right? So very quickly let us move and see some of the question types based on this pattern, right? iExamB courses make your preparation 50% faster because of its 3 unique features. First, crisp content. These online courses are conceptualized and curated by the experts who themselves have cleared several government job exams. The whole syllabus is covered through short crisp videos followed by concept check questions and short summary notes in downloadable PDF format. To take care of your speed and accuracy, lots of practice questions are also there. All the contents are arranged in such a manner that you are able to learn gradually and effortlessly, and that make your journey enjoyable and your preparation 50% faster. Second, flipped classroom. To clear your doubts, we have live sessions where you interact face to face with the expert faculty and they clear all your doubts. If you miss the sessions, no problem. iExamB hai na. You get all the class recordings. Each and every student is unique and has his own strengths and weaknesses. And the third feature takes care of this. Our faculty and mentors help you craft your unique and personalized preparation strategy. You can book one-on-one sessions with the faculty and discuss anything that you may hesitate to ask in the live class. Also, they analyze your mock tests. Friends, iExamB takes utmost care and effort to curate the course, which is just perfect for you, and help you prepare 50% faster. The testimony of the 50% faster preparation is the huge number of selections in exams like RBI Grade B, SEBI Grade A, NABARD, SBI, IBPS, PO, EPFO, FCI, and many others, covering all streams like IT, legal, etc. Please visit the testimonial page on our website and listen directly from the successful candidates. Time is your most valuable resource. We follow ROTI principle, return on time invested. By preparing 50% faster, you are increasing your chances of selection. Thank you. So friends, let's see the first question. It says the people in the so and so, right? So these are the 3 parts and you have to arrange them in an order. Now इनको करने का 2 तरीका होता है. First method is, कौन से 2 तरीके हैं? How can you solve? First, just start reading yourself and उसको try करो कि कौन सा आप context के basis पे arrangement कर सकते हो, ठीक है? और next जो एक better way है, that is आप ऑप्शंस से अप्रोच करो. ओके, आई रिपीट अगेन, अप्रोच फ्रॉम द ऑप्शंस, स्टार्ट रीडिंग द सेंटेंसेस इन दिस ऑर्डर, अरेंज द पार्ट्स इन दिस ऑर्डर एंड देन रीड द सेंटेंस. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ऑप्शंस फर्स्ट. लेट्स कंसिडर ऑप्शन ए. इट सेज द पीपल इन द King's Court could not at the funny sight control their laughter. So this is not making sense, but if you read PRQ, could not do what? Could not control their laughter at the funny sight, right? So the people in the King's Court, again PRQ is the correct sequence here, and you should mark option B as your answer and move ahead. All right. Now the next one says, the master finally, for wisdom, peace of mind, made his last wish and asked, and a life free of worries, right? So
वी ऑल्सो नो व्हेन वी रीड दीज पार्ट्स वी नो कि यहाँ पर विश मांगी है, ठीक है। सो मेड हिज लास्ट विश एंड आस्क्ड फॉर व्हाट, 3 थिंग्स, यहाँ पे 3 चीजों की, 1, 2, एंड लाइफ फ्री ऑफ वरीज। तो जैसे हमें पता है कि आस्क्ड फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए पूछा है और यहाँ पे चीजें लिस्टेड हैं, राइट। सो ये मतलब श्योर हो गया कि ये लास्ट पार्टी होना चाहिए क्योंकि चीजें सब लिस्टेड है और यहाँ पे एंड है। तो जनरली अगर 2 से ज्यादा चीजें लिस्टेड होती हैं उनको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं और लास्ट से पहले एंड लगाते हैं। तो ये सब जो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं हमें पहले से पता होती हैं, वो भी हमारे काम आती हैं, बट काम हमेशा आपका आएगा कि आप ऑप्शन से बढ़ें, ठीक है। तो ऑप्शन से चल के देखते हैं। PQR, द मास्टर फाइनली फॉर विजडम, व्हाट फॉर विजडम वी डोंट नो, P से स्टार्ट नहीं हो सकता। R पे आएंगे, द मास्टर फाइनली एंड अ लाइफ फ्री ऑफ वरीज, फाइनली एंड अ लाइफ फ्री ऑफ वरीज नथिंग, फाइनली डिड व्हाट ये बताना चाहिए, ठीक है। फाइनली क्या है, एडवर्ब है, तो इसके बाद क्या आना चाहिए कि कोई एक्शन हुआ है या इस तरह से एडजेक्टिव या कोई एक्शन वर्ब, इस तरह से चीजें आनी चाहिए, ठीक है। अब Q और QPR देखते हैं पहले। द मास्टर फाइनली मेड हिज लास्ट विश एंड आस्क्ड फॉर विजडम, पीस ऑफ माइंड एंड अ लाइफ फ्री ऑफ वरीज। हाँ, अब एकदम सेंस बन गया है QPR से क्योंकि 3 चीजें मांगी, फॉर विजडम, पीस ऑफ माइंड एंड अ लाइफ फ्री ऑफ वरीज। इट इज एब्सोल्युटली मेकिंग सेंस। QPR को हम आंसर मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ बोला है शी गॉट सो स्कैर्ड विद समथिंग, मैरिड एन ओल्ड मैन, the thought of living alone that she finally, okay, so again option से चलेंगे। she got so scared that she finally, the thought of, finally again did something, कोई action आना चाहिए, the thought यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो the thought क्या है, thought यहाँ पे noun हो गया है, पर यहाँ पर action आना चाहिए, finally लिखा है, adverb है, action आएगा, ठीक है। तो यहाँ बोला है RPQ सही नहीं है, PQR देखें। शी गॉट सो स्कैर्ड विद मैरिड एंड ओल्ड मैन, द थॉट ऑफ लिविंग अलोन, ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। PRQ, गॉट सो स्कैर्ड विद मैरिड एंड ओल्ड मैन, ये भी सेंस नहीं बना रहा है, PRQ भी नहीं हो सकता है। QRP, she got so scared with the thought of living alone that she finally married an old man. finally के बाद married आ गया, action आ गया, ठीक है। she finally married an old man, okay, so yes, इसका बिल्कुल सेंस बन रहा है कि वो इतना डर गई the thought of living alone से कि उनको अकेले रहना पड़ेगा कि उन्होंने किसी ओल्ड मैन से ही शादी कर ली। तो QRP जो है वो करेक्ट ऑर्डर है, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, ये भी एक पैटर्न होता है जिसमें हमें पार्ट्स ऑफ अ पैराग्राफ यानी कि सेंटेंसेस हमें दे रखे रहते हैं और वो हमारे जम्बल्ड होते हैं और हमें उनको सही ऑर्डर में लगाना होता है। अब ये मोस्टली स्टोरी लाइक होते हैं और इस केस में आपको फर्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट जो है वो फिक्स्ड है, ऑलराइट। तो इसमें देखते हैं, यहाँ बोल रहा है जो फिक्स सेंटेंसेस होते हैं फ्रेंड्स, उससे हमें काफी हिंट मिल जाती है कि पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है और कहाँ तक जा रहा है, राइट। तो देखते हैं, एवरी डे अ हंट्समैन वेंट टू अ फॉरेस्ट नियर हिज विलेज टू हंट, ओके। और लास्ट में कह रहे ही आस्क्ड द फिशरमैन वेदर ही कुड टेक सम फिश होम बाय एक्सचेंजिंग सम मीट। तो मतलब फिशरमैन एक कोई नया आदमी आया है, पहले हंट्समैन था, फिर फिशरमैन से कोई मिला, ठीक है, और मतलब हंट्समैन ही मिला होगा। सो लेट्स सी कि बाकी सेंटेंसेस क्या कह रहे हैं। तो देखिए यहाँ इन 3 सेंटेंसेस में फिशरमैन की बात हो रही है, राइट। तो ये 3 सेंटेंसेस जो हैं वो बाद में आएंगे, राइट। इसमें हंट्समैन की भी बात हो रही है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। और यहाँ पे भी हंट्समैन की बात हो रही है, यहाँ पे डॉग की बात हो रही है, डॉग और हंट्समैन की, ठीक है। तो अभी क्या कह रहे हैं, एवरी डे हंट्समैन वेंट टू अ फॉरेस्ट नियर हिज विलेज टू हंट, ही ऑल्सो टुक हिज डॉग टू गिव हिम कंपनी, ठीक है। ही कौन है, हंट्समैन है, ठीक है। आप कह रहे हैं द फिशरमैन वाज कैरिंग, अब हमें नहीं पता कौन है फिशरमैन, राइट। तो पर इससे पहले इस सेंटेंस में बोला गया है वन डे व्हेन द हंट्समैन वाज रिटर्निंग होम ही मेट अ फिशरमैन ऑन द वे, ठीक है। तो फिशरमैन वाला सेंटेंस इससे पहले आना चाहिए, इससे पहले आ जाएगा फिशरमैन वाला सेंटेंस और द हंट्समैन वांटेड टू टेक सम फिश होम, ठीक है। तो मतलब अब स्टोरी क्या बन रही है समझ में आ गया होगा आपको। क्यू आएगा पहले, तो क्यू वाला ऑप्शन है आपका QSRP। एस कह रहा है वन डे व्हेन द हंट्समैन वाज रिटर्निंग होम ही मेट अ फिशरमैन ऑन द वे,
द फिशरमैन वॉज कैरिंग अ बास्केट फुल ऑफ फिश, द हंट्समैन वॉन्टेड टू टेक सम फिश होम। ठीक है, तो उनको फिश चाहिए थी, तो फिर उसके बाद उन्होंने फिशरमैन से पूछा वेदर ही could take some fish home by exchanging some meat, right? So QSRP जो है absolute sense बना रहा है। Alright, so next वाला क्या कह रहा है? Once upon a time there was a famous flute player in Rome, ठीक है, और लास्ट में क्या कह रहा है? But once he recovered and went back to stage, people have moved on and there was little enthusiasm for his song। ठीक है, तो मतलब जब वो ठीक होकर स्टेज पे गया तब लोग आगे बढ़ चुके थे और उनकी सॉन्ग के लिए इंथुजियाज्म नहीं था। और उससे पहले क्या है कि फेमस फ्लूट प्लेयर था रोम में। ठीक है, अब देखो पीपल केम रनिंग टू कैरी हिम आउट। क्या हुआ ऐसा कि वो भागे भागे आए? वी डोंट नो। एट वन ऑफ द शोज वाइल प्रिंस वॉज प्लेइंग। हु वॉज प्रिंस? वी डोंट नो। हिज नेम वॉज प्रिंस। किसका नेम? जो फेमस फ्लूट प्लेयर था। तो मतलब आर जो है सबसे पहले आएगा, तो RQPS ये है हमारा अरेंजमेंट। आर सबसे पहले केवल ऑप्शन ए में दे रखा है। अब हम इस ऑर्डर में पढ़ेंगे। आर सेज हिज नेम वॉज अ प्रिंस। At one of the shows, while Prince was playing the flute, he slipped and tumbled down the stage. People came running to carry him out. तो carry him out क्यों हुआ? क्योंकि वो tumble down the stage हो गया। ठीक है, and he had broken his leg. His listeners missed him as he took many months to recover, but once he recovered, अब एकदम सेंस बन गया है, ऑर्डर में लग गया है। RQPS हमारा सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का ही एक तरीका होता है कि आप बस प्रैक्टिस करो और आप जो है सॉल्यूशंस पे पहुंच जाएंगे। और ये जो आपका ECGC का एग्जाम है, EO और APFC का, उसके लिए हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए रेडी करके बहुत सारे MTs प्रोवाइड करे हैं। तो आप अगर चाहें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर hello@iexambly.com पर हमें लिखकर पूछ सकते हैं उन मॉक टेस्ट के बारे में और उनको कैसे अटेम्प्ट करें, क्या करें, कैसे आप अपनी जो अपनी अभी तक पढ़ा है उसको कैसे आप एकदम पक्का कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं अपनी पोजीशन, ये सब आप एक बारी चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे आके। दिस इज ऑल फॉर द वीडियो फ्रेंड्स। बने रहिए हमारे चैनल पर, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि और भी हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जब लेकर आए आप उनको मिस ना करें और वीडियो जरूर देखें कि कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं EPFO, EO और APFC के एग्जाम में।